Hello students, welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. So this is our model 1 of algebraic expressions and identities. So what we will learn in this model, we will learn addition and subtraction of algebraic expressions. Algebraic expressions के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका addition और subtractions कैसे होते हैं. ठीक है? So what did we learn in this model? We will learn algebraic expressions के बारे में समझेंगे हम लोग. ठीक है? What we will learn? We will learn algebraic expression, addition of algebraic expressions, horizontal and vertical method, subtraction of algebraic expression और horizontal और vertical method से कैसे होगा. ठीक है, सब समझते एक एक करके. एक्सप्रेशन समझते किसे बोलते हैं. In mathematics, an algebraic expression is an expression built up from integer, constant variables in the algebraic operations. For example, 3x square minus 2xy. 3x square minus 2xy इसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल लग रहा है. वेरिएबल क्या क्या है, एक्स है, वाई है वेरिएबल. कांस्टेंट क्या क्या लग रहा है, 3 और 2. और इसमें ऑपरेटर्स लगते हैं क्या क्या, और अलजेब्रिक ऑपरेटर्स लगते हैं प्लस एंड माइनस, आप जनरली देख सकते हो. तो ये कि एक्सप्रेशंस. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट के बारे में समझते हैं. Just wait. Yeah. Take the expression 4x plus 5. This expression is made up of two terms, 4x and 5. Terms are added to form expressions. Terms themselves can be formed as a product of factors. The numerical factor of a term is called numerical coefficient, जो भी आप देख सकते हो, और simply the coefficient process से coefficient भी बोलते हैं. The coefficient in the term 7x is y is 7 and the coefficient in the term minus 5x is minus 5x, minus 5. क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है तो आपका coefficient क्या बच रहा है, minus 5 बच रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर आपको सिर्फ पूछ रहे हैं ना, तो जो नंबर से रिलेटेड है आप वही लिखिएगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन. Monomial, binomial, and polynomial. Expression that contains only one term is called a monomial. Expressions that contains two terms is called binomial, and the expressions containing three terms is a trinomial, and so on. In general में बोल सकते हैं, an expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variables having non-negative integers as exponents is called a polynomial. उसे क्या बोलते हैं हम, polynomial. A polynomial may contain any number of terms or more than one. ठीक है ना. पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा भी टर्म्स आपके हो सकते हैं. ओके. मोनोमियल में आप एग्जांपल देखो, 4x स्क्वायर, 3xy, -7x, -7z. ठीक है ना. एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल ऑपरेटर के साथ एक जुड़ा होगा, जैसे कि a+b, 4l + 5m, a+4. ये सब क्या है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल होगा. एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल्स हो जाएगा a+b + c, 2x + 3y. और पॉलिनोमियल में तो आपका सभी आ जाएंगे, आपका 3xy मोनोमियल भी, बाइनोमियल भी, और मे भी हो सकता है उससे ज्यादा भी टर्म्स होंगे. ठीक है. लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसे किसे बोलते हैं. In algebra, like terms are terms that have the same variables and powers. The coefficient do not need to match. ठीक है ना. जरूरी नहीं कि coefficient आपका मैच करे, लेकिन हाँ, वेरिएबल मैच करना ही करना चाहिए. Unlike terms are two or more terms that do not like terms. That is, they do not have the same variables or power. जिसके same और variables और powers नहीं होते. ठीक है ना. वेरिएबल्स में तो आपके से आपका 2x³ है, 2x स्क्वायर है, इसमें x तो है, लेकिन पावर सेम कहाँ है, तो वो दोनों अनलाइक टर्म्स ही कहलाएंगे आपके. ठीक है. एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं. इन मैथमेटिक्स जस्ट लाइक वी ऐड मैनी नंबर्स, है ना, करते हैं 2 + 3 5 हो जाएगा. ठीक है. उसी तरह से as we can find the sum we add two or many algebraic expressions too. हम लोग कर सकते हैं ऐड. However, for the addition of algebraic expression we combine all the like terms and then add them. जरूरी है. 2xy है तो वो xy के जितने वेरिएबल्स वाले पार्ट होंगे वो उससे ही आपका ऐड होगा. ये नहीं कि आप 2xy + 5z + 7xz से कर दो, नहीं होगा. आप एक घोड़ा और एक हाथी को प्लस साइन से फिर ऐड कर सकते हो. ये नहीं बोल सकते आप
कि 5 घोड़ा हाथी या फिर 2 घोड़ा हाथी है, 1 घोड़ा 1 हाथी को 2 घोड़ा हाथी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होता है ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले समझते हैं स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं। लेट्स सी steps to be followed to do the addition of algebraic expressions by the horizontal method is written below. Step 1, write all the expressions in horizontal line by putting them into brackets and put an addition sign in between. Step 2 हो जाएगा, group all the like terms together from the expressions and rewrite the expressions so formed. Step 3 is add numerical coefficient to all the like terms followed by the common variable. Step 4 आपका आखिरी है, rewrite the simplified expressions. Make sure all the terms in the final answer should be unlike terms. Okay. कॉलम मेथड फॉर एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले स्टेप 1 में आ जाता है, राइट ऑल द एक्सप्रेशंस वन बिलो द अदर, नीचे लिखना है जस्ट। ठीक है, मेक श्योर टू राइट द टर्म्स इन वन कॉलम, एक कॉलम में लिखे। in the if there a term whose like term is not there in the second expression, for example, then either write below or leave that column blank. Step 2 हो जाएगा, add the numerical coefficient of which column like terms and write below it in the same column followed by the common variable. Rewrite the final answer, अब फाइनल आंसर लिखे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 जैसे जो भी है। एक एग्जाम्पल बस था, एडिशन में देखिए आप देख रहे हैं क्या क्या ऐड किया गया और क्या क्या नंबर लिया गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 6x क्यूब प्लस, ये आपको ऐड करना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस 3x क्यूब। क्या किया गया, पहले एक्स क्यूब वाले टर्म को एक जगह लिखा गया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस 2x स्क्वायर को एक जगह लिखा गया। फिर क्या किया गया, 7x वाई स्क्वायर और माइनस 5x वाई स्क्वायर को, यहाँ पे आप देखिए वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर है और x में एक पावर है तो यहाँ भी एक पावर है। ठीक है, लाइक टर्म्स को बेसिकली लिखा गया है, अब ऐड कर दिया जा रहा है, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 इज 9, 9 वाई क्यूब हो गया, साइन रहेगा माइनस का, देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 इज 6 प्लस 6x वाई, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 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 किया गया, 7 माइनस 5 इज 2, लेकिन क्योंकि 7 का साइन बड़ा है जो कि प्लस है तो आपका यहाँ पे प्लस आ गया। नाउ प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई में घटाना है आपको 2x स्क्वायर वाई को, तो फिर वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्योंकि 2 बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को आप ऐड करोगे तो आपको एक्स क्यूब आएगा आपको। ये होता है वर्टिकल मैथड, ठीक है ना, और या फिर बोल सकते हैं आप कॉलम मेथड भी। नाउ हॉरिजॉन्टल मेथड, 4x प्लस 5y माइनस 7z है, प्लस इसको ऐड किया गया है 3y माइनस 2x प्लस 5z माइनस 2y से, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाता है 4x माइनस 2x प्लस 5y प्लस 3y माइनस 2y प्लस 5z माइनस 7z। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिख सकते हो 4x माइनस 2x इज 2x, 5 plus 3 is 8y, 8y minus 2y is 6y. Now 5z minus 7z, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, क्योंकि 7 का साइन बड़ा है इसीलिए माइनस, तो इट विल बी योर आंसर। ठीक है, subtraction of algebraic expressions. While subtracting one algebraic expressions from another, we need to be careful with the signs. अब साइंस पे आप careful रहे। It should be noted if there's a subtraction sign before the brackets, we need to reverse all the signs once we open the brackets. जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन हमको रिवर्स कर देना है, यानी कि जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है उसे प्लस कर देना है हमें। ठीक है, स्टेप 1 क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मेथड में, राइट द एक्सप्रेशंस इन वन रो विद द एक्सप्रेशंस टू बी सब्ट्रैक्टेड इन द ब्रैकेट विद असाइनिंग नेगेटिव साइन टू इट। पहले सारा नंबर्स लिखना है आपको जितने भी होंगे आपके एक्सप्रेशंस, देन दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है और बीच में एक नेगेटिव साइन रहेगा, वो इंडिकेट कर रहेगा कि जो नंबर से पहले जो एक्सप्रेशन है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है दूसरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, एट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द सेकंड एक्सप्रेशन टू द फर्स्ट एक्सप्रेशन। एडिटिव इनवर्स यानी कि सिंपली वे में हमने बताया जो प्लस है वो साइन चेंज हो जाता है, यानी जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। स्टेप 3, ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट। स्टेप 4, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। कॉलम मेथड क्या हो जाएगा, स्टेप 5 प्रोसीजर
फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय कॉलम और वर्टिकल मेथड। स्टेप 1 हो जाएगा राइट द एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ नेसेसरी। स्टेप 2 हो जाएगा राइट द एक्सप्रेशंस वन बिलो द अदर such that the expressions to be subtracted comes in the second row and the like terms come one below the other. Step 3 हो जाएगा change the sign of every month of expression in the second row to get the additive inverse of the expressions. और step 4 क्या हो जाएगा add the like terms obviously column wise and write the result below the concerned method. step 5 में standard method में आप लिखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो horizontal method लगाया गया है। यहाँ पे 3x + 4y - 7xy है। माइनस का साइन हमने बताया था। यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जा रहा है, एक ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें माइनस साइन का यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन चेंज हो गया सबका। यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। अब जो जो लाइक टर्म्स है उसे एक साथ लिखिए। 3x दिख रहा है, 3x के साथ कोई नहीं है। 4y और ये वाला y साथ में है, तो क्या हो जाएगा 36 - 4 = 32, तो -32y हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6xy हो जाएगा। सॉरी, इट इज xy एंड इट इज yz है, अलग अलग है, सॉरी। -7xy का 7xy रहेगा और +yz का yz रहेगा। सेम होना चाहिए, लाइक टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स के साथ ऐड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ y यहाँ पे लाइक टर्म्स थे, तो इसलिए वहां पे किया गया। ओके, नाउ मूविंग ऑन। वर्टिकल मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो, एक वर्टिकल मेथड है। 5 और 4 है, यहाँ पे साइन चेंज क्या कर दिया गया, यहाँ पे 4 का माइनस से प्लस, देन यहाँ पे 6 -6x का साइन चेंज कर दिया गया प्लस में, देन यहाँ पे प्लस का साइन माइनस में चेंज कर दिया गया, और देन कॉलम वाइज सबको ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5x² - 5x² + 7x + 9 हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। सो इससे आप यहाँ पे वर्टिकल मेथड आप लगा सकते हो और समझ सकते हो क्वेश्चंस को इजीली। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 1 ऑफ algebraic expressions and identities. Hope you really enjoyed my solutions. Thank you so much.